Assalamu alaikum class 10. Today we are going to study Lewis concept of acids and bases. Students, we have studied up till now Arrhenius and Bronsted-Lowry concepts of acids and bases. They were limited to substances which contain protons. G. N. Lewis 1923 proposed a more general and broader concept of acids and bases. So as we have learned, according to Arrhenius, an acid is a substance which can dissociate H positive ion in aqueous solution, and base is a substance which can dissociate OH ions in aqueous solution. And according to Bronsted, acid was a substance which can donate an electron and a base which can accept electron. So G. N. Lewis in 1923 proposed a more general and broader concept of acids and bases. According to this concept, an acid is a substance, molecule or ion which can accept a pair of electrons, while a base is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electrons. एक एसिड सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डोनेट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस by forming a coordinate covalent bond between ammonia and boron trifluoride by donating an electron pair of ammonia and accepting electron pair by boron trifluoride. एक रिएक्शन दी है जिसमें अमोनिया और BF3 के दरमियान में एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं दोनों के दरमियान में. हो क्या रहा है कि अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और बोरॉन उसे एक्सेप्ट कर रहा है. सो बच्चों, ये BF3 था और ये NH3 है, ठीक है. NH3 ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर से डोनेट कर दिया. अब एक पेयर जो डोनेट हो गया इसके पास, तो हमने पढ़ा कि जो बेस है वो डोनेट कर सकता है और एसिड एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है. तो जो कैटाइन प्रोटॉन है वो ल्यूइस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और जो रिएक्शन हुआ H पॉजिटिव और NH3 के दरमियान में, वहाँ H एक एसिड है और अमोनिया एक बेस है. The product of any Lewis acid-base reaction is a single species called an adduct. जो बच्चों प्रोडक्ट होता है ना किसी भी Lewis acid-base reaction का, जो एक सिंगल स्पीशी होती है, उसे adduct कहते हैं. So, a neutralization reaction according to Lewis concept is donation and acceptance of electron pair to form a coordinate covalent bond in an adduct. तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक न्यूट्रल रिएक्शन Lewis concept के अकॉर्डिंग वो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन भी हो रही है और एक्सेप्टेंस भी हो रही है, ताकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सके एडक्ट के अंदर. एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स व्हाइल बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स. Thus it is evident that any substance which has an unshared pair of electron can act as Lewis base, while a substance which is an empty orbital that can accommodate a pair of electron act as Lewis acid. Students, we have learned that acids are substance electron pairs हैं जो कि accept कर सकते हैं, ठीक है, और bases donate कर सकते हैं, donors हैं. तो it is evident कि कोई सा भी ऐसा substance जिसके पास कोई unshared pair of electron हो, वो Lewis base को तौर पर काम कर सकता है, और कोई ऐसा substance जिसके पास empty orbital है जो कि accommodate कर सकते हैं electron की pair को, वो Lewis acid के तौर पर act करेगा. So examples are given below. Lewis acids. According to Lewis concepts, following act as Lewis acids. Molecule in which central atom has incomplete octet. अभी वो molecules हैं जिनके central atom में incomplete octet है. For example, BF3, AlCl3, FeCl3. इनके central atom में 6 electrons हैं. They can accept an electron pair. Simple cations can act as Lewis acid. All cations जो होते हैं ना, cations, वो Lewis acids हैं, since they are deficient in electrons. However, cations such as sodium, potassium, calcium ions, they have a very little tendency to accept electron. कुछ ऐसे cations हैं जिनमें कम tendency accept करने की, और कुछ ऐसे cations हैं जिनमें बहुत ज़्यादा tendency accept करने की, like H positive, Ag positive ions, etc. They have greater tendency to accept electrons and act as Lewis acids.
लुईस बेसिस क्या है? अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट, फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लुईस बेसिस. न्यूट्रल स्पीशीज बच्चों, वो न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, amines, alcohol, etc. They act as Lewis bases because they contain a lone pair of electron. न्यूट्रल स्पीशीज जिनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, वो ल्यूइस बेसिस के तौर पर एक्ट करेंगी. फॉर एग्जाम्पल NH3, RNH2, ROH. एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और एनाइंस फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड, सियानाइड, हाइड्रोक्साइड आइन, ये लुईस बेसिस के तौर पर एक्ट करेंगी. कॉन्सेप्ट लेते हैं तक समरी का. आर्हीनियस में क्या था? एसिड को H पॉजिटिव देता है एक्वस सोल्यूशन में, और बेस था कि वो OH नेगेटिव देता है एक्वस सोल्यूशन में. और सॉल्ट क्या होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट प्लस H2O. ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड डोनेट करता है हाइड्रोजन और बेस एक्सेप्ट करता है हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट है कॉन्जुगेट एसिड बेस. ल्यूइस के अकॉर्डिंग जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एडक्ट. ये बच्चों ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इट मे बी नोटेड दैट ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो ल्यूइस बेसिस, बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट ल्यूइस एसिड्स. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, base is a substance which can accept a proton, and according to Lewis, base is a substance which can donate a pair of electron. जो Lewis bases हैं, they generally contain one or more lone pair of electron and they can accept a proton. Thus, all Lewis bases are Bronsted bases. On the other hand, Bronsted acids are those which can give a proton. For example, HCl, H2SO4 are not capable of accepting a pair of electron. Hence, all Bronsted acids are not Lewis acids. बच्चों उसने कहा है कि जो तमाम Bronsted bases हैं वो तो Lewis bases हैं, लेकिन Bronsted acids Lewis acids नहीं है. और उसने एक एक्सप्लेनेशन दी है कि Bronsted के मुताबिक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट करता है और Lewis के अकॉर्डिंग वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर. जो Lewis बेसिस में ये टेंडेंसी है कि वो एक्सेप्ट कर सके प्रोटॉन को, तो तमाम Lewis बेसिस Bronsted बेसिस हैं. लेकिन जो Bronsted acids हैं दे कैन गिव अ प्रोटॉन, लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स हैं HCl, H2SO4, दे आर नॉट कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स हैं तमाम लुईस एसिड्स नहीं हैं. जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या एसिड्स की? फर्स्ट विल डिस्कस फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन बिगिनिंग ऑफ चैप्टर. ओके. केमिकल प्रॉपर्टीज़. रिएक्शन विद मेटल्स. एसिड्स रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम. जो एसिड्स हैं वो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करेंगे मेटल्स के साथ, जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम. हाउएवर, dilute acids HCl and H2SO4 react moderately with reactive metals. जो dilute acids हैं वो moderately react करेंगे metals के साथ, for example Mg, Zn, Fe और Al के साथ, ताकि respective salts बना सकें with evolution of hydrogen. For example Zn ने H2SO4 के साथ react किया, ZnSO4 बना और hydrogen liberate हो गई. Reaction with carbonates and bicarbonate. Acids react with carbonates and bicarbonates to form corresponding salts with the evolution of carbon dioxide gas. Acids जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि सॉल्ट बना सके और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एवोल्यूशन हो सके. रिएक्शन विद बेसिस. एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करें ताकि वाटर और सॉल्ट बना सकें. इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स. एसिड्स रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बायसल्फाइड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस. एसिड्स जो हैं सल्फाइड्स और बायसल्फाइड्स से रिएक्ट करती हैं ताकि सॉल्ट बना सकें और सल्फर डाइऑक्साइड गैस की लिबरेशन होती है. द नेक्स्ट रिएक्शन इज विद सल्फाइड्स. Acid react with metal sulfides to liberate hydrogen sulfide gas. Acid जो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिबरेट करती है जो मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्ट करती है. So these are all properties. They can react with metals, explosively react with metals, react with carbonates and bicarbonates for evolution of carbon dioxide gas. They react with bases to form salts and water.
They react with sulfides and bisulfides for liberation of sulfur dioxide gas and react with sulfides to liberate hydrogen sulfide gas. So let's discuss some uses of acids. Sulfuric acid. It is used to manufacture fertilizers, ammonium sulfate, calcium superphosphate, explosive, paints, dyes and drugs. सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है ताकि मैन्युफैक्चर कर सकें फर्टिलाइज़र्स को, पेंट्स को, डाइज को, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स को. इट इज़ ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी. सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरीज में एज एन इलेक्ट्रोलाइट सर्व करता है. नाइट्रिक एसिड. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइज़र, अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, ड्रग्स, एचिंग डिज़ाइन एंड कॉपर प्लेट्स. नाइट्रिक एसिड भी यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में फर्टिलाइज़र्स की, पेंट्स की, ड्रग्स की. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग मेटल्स, टेनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज. ये यूज़ होता है मेटल्स को क्लीन करने के लिए टैनिंग में, प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में. बेंजोइक एसिड इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन. बेंजोइक एसिड यूज़ होता है फूड प्रिजर्वेशन में. एंड एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन. एसिटिक एसिड यूज़ होता है फूड के फ्लेवर में, उसकी प्रिजर्वेशन में. इट इज़ ऑल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग्स ऑफ वास्प्स. जो वास्प जो स्टिंग्स डाल मतलब बाइट करता है, उसके क्योर करने के लिए भी एसिटिक एसिड यूज़ होता है. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज. दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, a neutralization reaction. They react with ammonium salts to liberate ammonia gas. Alkalis precipitate insoluble hydroxides when added to solution of salts of heavy metal such as copper, iron, zinc, lead and calcium. Alkalis क्या करते हैं? Precipitates बनाते हैं जब वो heavy metals के साथ react करते हैं, जैसे copper, iron, zinc, lead, calcium के साथ. Uses क्या हैं bases के? Sodium hydroxide is used for manufacturing of soap. For soap manufacturing, sodium hydroxide is used. Calcium hydroxide is used for manufacturing of bleaching powder, softening of hard water and utilize acidic soil and lakes to do acid rain. Calcium hydroxide use होता है for manufacturing of bleaching powder, hard water की softening के लिए, और जो acidic soils और lakes उनकी utilizing के लिए. Potassium hydroxide is used in alkaline batteries. Potassium hydroxide alkaline batteries में use होता है. Magnesium hydroxide is used as a base to neutralize acidity in stomach. Magnesium hydroxide को use करते हैं ताकि stomach के अंदर acidity को neutralize कर सके. It's also used for treatment of bee stings. Aluminium hydroxide is used as a foaming agent in fire extinguishers. Aluminium hydroxide को fire extinguisher में use करते हैं as a foaming agent. Ammonium hydroxide is used to remove grease stains from clothes.